Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh, class 10th, Sources of Energy part 3 start करने वाले हम. In the previous videos what we have seen, renewable, non-renewable क्या है, conventional, non-conventional क्या है, hydro, wind, thermal power plants से कैसे electricity produce होती है, क्या advantage हैं, क्या disadvantage हैं. Next हम देखेंगे what? Geothermal energy. What is geothermal energy? Geothermal energy is the, thermal means heat, geo matlab earth, heat of the earth, and it is naturally occurring thermal energy found within the rock formations and the fluids held within those formations. So, energy harnessed from the heat of the sun is called geothermal energy. Geo means related to heat, related to earth. जियोथर्मल क्या है? सन की जो एनर्जी अर्थ में ट्रैप हो रही है और अर्थ से हम वापस निकाल रहे हैं, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी. मैग्मा is formed when this heat melts the rocks. The rocks and hot gases are called magma. The magma gets collected at some depth below the earth surface. These places are called hot spots, जहाँ पे magma developed है या stored है. When underground water comes in contact with these hot spots, it changes into steam which can be used to generate electricity. Under the earth बहुत जगह मैग्मा प्रेजेंट है. वाटर जब उसके कनेक्शन में आएगा, लिंक में आएगा, तो वाटर गेट्स कनेक्टेड टू स्टीम और वो स्टीम हमारे बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है. आई होप इट इज़ क्लियर गाइस. जियोथर्मल के एडवांटेजेस क्या है? रिन्यूएबल है, कोई खर्चा नहीं लग रहा बनाने में, और इनएक्सपेंसिव भी है. डिसएडवांटेजेस क्या है? ओनली अ फ्यू साइट्स आर अवेलेबल एंड अ बिट एक्सपेंसिव. यहाँ लगेगा इनएक्सपेंसिव बोल रहा है, एक्सपेंसिव बोल रहा है. इनएक्सपेंसिव टू रन है, एक बार इंस्टॉलेशन करने के बाद में कुछ नहीं खर्चा, लेकिन इनिशियल कॉस्ट इज अ बिट हाई. ऑलराइट. Ocean energy. Ocean acquires almost 70% of the surface of the earth. The enormous amount of water present in them did not act as a big collector of solar heat energy, but also store large amount of it due to its high specific heat. Specific heat क्या होता है? To trap the energy. Thus, ocean water can be used as a renewable source of energy. The main forms of ocean energy are, firstly, ocean thermal energy. Thermal means heat. The energy available due to temperature difference between the deeper level and the surface of the ocean is called ocean thermal energy. ऊपर की सतह में और नीचे की सतह में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो कहलाता है ओशन थर्मल एनर्जी. ओशन के अंदर टेम्परेचर में डिफरेंस, वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट इज ओशन टाइडल एनर्जी. द राइज ऑफ द ओशन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून इज रेफर्ड टू एज हाई टाइड एंड इट्स फॉल इज रेफर्ड एज लो टाइड. ये मून के ग्रेविटेशन के कारण होता है. द इनरमस अमाउंट मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू हाई एंड लो टाइड provide a large amount of energy known as ocean tidal energy. This due to tides, okay. This tidal energy can be utilized by constructing a tidal barrage or a dam, okay. Sea wave energy. ये तो tides था, पहले thermal था, अब wave energy. The energy obtained from the high speed sea waves is referred as sea wave energy. In fact, these high speed sea waves have a lot of kinetic energy associated with them
which can be used to drive dynamos which convert kinetic energy into what? Electrical energy. बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी अगर सी वाटर की, देन अगर हम वहाँ डायनेमोज रखते हैं, डायनेमोज मीन्स अ काइंड ऑफ जनरेटर ओनली, then that dynamo can convert that kinetic energy into electrical energy and we can have electricity. Alright. तो ये था सी वेव एनर्जी. एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर ड्यूट्रियम ऑफ ओशन. क्या कह रहा है, समझ नहीं है, समझे. द ओशन वाटर कंटेन्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप्स कॉल्ड एज ड्यूट्रियम. अभी आइसोटोप क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास. ये होता है नंबर, ये होता है मास. तो हाइड्रोजन के 1 1 1 2 1 3 तीन आइसोटोप होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. ऐसे कॉम्बिनेशन को आइसोटोप बोला जाता है और इन्हीं में से एक कौन है, ड्यूट्रियम, दिस वन. राइट. तो सी वाटर के अंदर, ओशन के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप्स है, जिसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, विच इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 1 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. देखो इस फर्स्ट में देखें, इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 0. ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 - 1 1. इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन भी एक और न्यूट्रॉन भी एक. क्लियर है. साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय कैरिंग दी कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन. फिशन क्या होता है अभी आगे देखेंगे हम. फिशन मीन्स टूट जाना. ऑफ ड्यूट्रियम आइसोटोप. द प्रोसेस स्टिल इन इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टेज. पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि ड्यूट्रियम जो होता है ओशंस में, उसका हम उससे भी न्यूक्लियर एनर्जी निकाल सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर. एनर्जी फ्रॉम salinity gradient in the sea. Salinity means salt. Gradient means differences in the potential. मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा concentration में difference होना. The difference in the concentration of salts in sea water of the 2 or more seas is called salinity gradient. मतलब दो समुद्र अगर कहीं आसपास लाया करते हैं, एक में बहुत ज़्यादा खारा पानी, एक में कम है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. उसको क्या बोला जाता है, सैलिनिटी ग्रेडियंट. दिस सैलिनिटी ग्रेडियंट इज नाउ डे यूज टू ऑब्टेन एनर्जी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सूटेबल टेक्निक्स. इस लेवल पर उतना जरूरी नहीं, बट एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ड्यूट्रियम क्या होता है, उससे भी एनर्जी मिल सकती है. सैलिनिटी ग्रेडियंट क्या होता है सी में, उससे भी एनर्जी मिल सकती है. राइट. एनर्जी फ्रॉम सी वेजिटेशन और बायोमास. Sea vegetation or biomass is another direct source of energy because the enormous amount of seaweeds, समुद्र के नीचे गहराइयों में जो weeds हैं, present in the sea water provides an endless supply of methane fuel. Disadvantages क्या हैं, हर समय हम इसका एक जैसा टाइडल एक्शन नहीं देख सकते, वेरिएशंस होते हैं, उसको कंट्रोल या जज करना मुश्किल है. यहाँ पूछ रहा है प्रिंसिपल बताना है आपको. प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, हाउ द प्लांट वर्क्स, असेंशियल कंडीशन फॉर इट टू ऑपरेट प्रॉपरली. प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ओटैक मतलब ओशन थर्मल energy conversion. The water at the surface of the ocean is warmer. ऊपर सतह पे पानी
गर्म है. देन द वाटर एट द डीपर डेप्थ्स, नीचे पानी ठंडा है. दिस टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी यूज बाय द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम टू जनरेट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. इसका वर्किंग कैसा है? In this kind of plant, the energy of warm water, surface water, is used to convert low boiling point liquid ammonia into gaseous state. उसके एनर्जी को यूज़ करके एस सिस्टम से पास ऑन करते हैं जहाँ वो हीट गेन होती है और वो हीट पास किसको होती है? अमोनिया को. और लिक्विड अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हीट लेके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. दैन द वेपर ऑफ अमोनिया, वेपर ऑफ अमोनिया मतलब गैसियस अमोनिया बन गया ना. फिर वो अमोनिया की वेपर्स जो हाई प्रेशर पे हम कर सकते हैं कन्वर्ट, दे यूज टू स्पिन द टर्बाइंस. तो यहाँ हमने क्या देखा कि हीट कहाँ से आई? वार्म वाटर जो सरफेस वाटर है वो गर्म है, नीचे ठंडा है. इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस हीट से हमने साइड में अमोनिया को गर्म किया. अमोनिया को वो हीट देके उसको वेपर में कन्वर्ट किया. फिर अमोनिया वेपर में कन्वर्ट होके क्या कर रहा है? दौड़ के जा रहा है, हाई एनर्जी है उसके अंदर, और वो किसको कर रहा है? टरबाइन को स्पिन कर रहा है. टरबाइन ऑफ जनरेटर, जनरेटर कनेक्टेड है उस टरबाइन के दूसरे एंड पे, कन्वर्टिंग द ओशियन थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी. आई होप यू अंडरस्टूड द. देखो क्या है, वार्म वाटर जो था ओशियन का, उससे हमने क्या लिया? हीट. और वो हीट किसको पास करी? अमोनिया को. उससे अमोनिया क्या बन गया? वेपर. अमोनिया वेपर बन के क्या करता है? टरबाइन को फोर्स करता है, घुमाता है. और टरबाइन किससे कनेक्टेड है दूसरे एंड पे? जनरेटर से. और उस जनरेटर के रन होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है या जनरेट होती है. द यूज्ड वेपर पास थ्रू द कंडेंसर अगेन. जो यूज कंडेंस अमोनिया वेपर है वो ठंडी हो जाती है, एनर्जी लूज कर देती है. फिर वो कंडेंसर से पास होती है जहाँ कोल्ड वाटर उसको वापस किस में कर देता है? डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशन में. और अमोनिया वेपर वापस लिक्विड बन जाती है और फिर से वो यहाँ पहुँच जाएगी. क्लियर है? दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गेट कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें सिर्फ हमने क्या किया? पानी की हीट को यूज़ करके अमोनिया को गर्म किया, गर्म हुआ तो वेपर बना, टरबाइन चली, करंट आया, फिर वापस अमोनिया लिक्विड बनी, फिर वापस वो चली गई, फिर ये उतरा. तो ना अमोनिया का नुकसान हुआ हमारे लिए, ना पानी से कोई नुकसान. लेकिन बस वो जो हीट थी ना ओशन थर्मल एनर्जी, उसको हीट को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली. ऑलराइट. असेंशियल कंडीशन क्या होती है इसके लिए? असेंशियल कंडीशन यहाँ वर्किंग था. ऑलराइट, ये प्रिंसिपल था, ये वर्किंग था. और असेंशियल कंडीशन देखें. द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्मर वाटर एट द सरफेस एंड द कोल्डर वाटर एट द डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर शुड बी एट लीस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर. केल्विन में कितना है? 293 केल्विन. क्यों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन. इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड को 293 केल्विन बताया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का डिफरेंस होना चाहिए दोनों टेम्परेचर्स में. देन ओनली इट इज पॉसिबल. नेक्स्ट है बायोमास. व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? इट इज डिफाइंड एज लिविंग मैटर और इट्स रेजिड्यू. रेजिड्यू मीन्स बचा हुआ कचरा. एंड इज इट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑलराइट, रिन्यूएबल है, ये भी बार बार मिल सकता है. The biomass includes all the new plant growth, agriculture and forest residues like biogases, dark cedars, wood savings, roots, animals, everything जो कचरा है. Carbonaceous waste
carbonaceous waste like sewage, garbage, night soil, biodegradable organic effluent from industries. जो भी वेस्ट है इंडस्ट्री के लिए जो बायोडिग्रेडेबल है. इट इज़ द सोर्स ऑफ कन्वेंशनली यूज्ड फ्यूल्स दैट आर यूज्ड इन आवर कंट्री. फॉर एग्जांपल काउ डंग केक्स, फायरवुड, कोल, चारकोल. ओके, उन सबको सोर्स है ये. ऐसा होता है बायोमास प्लांट. स्लरी मीन्स यहाँ से क्या होता है, जो भी हमारा इन देना है हमें कचरा वगैरह सबको जो स्लरी की तरह मिक्स करके अंदर दिया जाता है सॉइल के नीचे. यहाँ वो स्टोर्ड रहता है, फर्मेंट होता है, उसके बाद गैस जनरेट होती है, वो यहाँ पे होती है. एंड दिस गैस इज स्टोर्ड ओवर हियर. जब यूज़ होगी गैस आउटलेट को खोल के वी कैन यूज़ इट. एंड जो बचा हुआ है वो इधर के थ्रू पास ऑन हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टर. It is a mixture of gases produced during decomposition of the biomass in the absence of oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ. ऑलराइट. मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस और मीथेन की वजह से ये बर्न होता है. बायोगैस प्लांट्स में क्या क्या यूज होता है? एनिमल डंग, गोबर एंड ऑल, सीवेज, I hope you understand, crop residues, vegetable waste, poultry droppings, etc. to produce biogas in the biogas plants. Advantages क्या हैं बायोगैस के? It is quite simple. It can easily be built in rural areas. A small plant using dung from 3 to 4 heads of cattle, 3-4 भैंसों से या गायों से, is capable of supplying biogas for 6 hours daily for cooking purposes. Can you imagine? 4 गायें अगर आपने रख रखी है, उनका जितना भी पोठा है नॉल, काउ डंग जो होता है वो आप यूज़ कर रहे हो और कुछ भी डाल रहे हो, 6 hours डेली कुकिंग पर्पसेस के लिए आप बायोगैस प्लांट के थ्रू सप्लाई कर सकते हो. फिर क्यों नहीं करते हम लोग? बिकॉज सॉरी टू से दिस, इंडियंस आर नॉट so aware. Alright, इसके आगे इस समय नहीं बोलूँगा. Biogas is a clean fuel that burns without smoke. That's why it is called a clean fuel and leaves no ash. ये जलती है बिल्कुल without smoke जलेगी और कोई ash नहीं छोड़ती. The main constant of biogas is methane, which has high calorific value 55 किलोजूल पर ग्राम. 1 ग्राम जलेगा तो इतनी किलोजूल एनर्जी देगा, जो पेट्रोल से भी ज़्यादा है. द स्पेंट स्लरी जो होती है ना, जो बच जाती, बीइंग रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इज गुड मैन्योर. जो बच जाता है उसको भी आप खाद के रूप में यूज ले सकते हो. बाय यूजिंग बायोगैस, फायरवुड इज सेव्ड एंड डिफॉरेस्टेशन इज रिड्यूस्ड. रोज रोज लकड़ियाँ काट के जलाना कम हो जाता है तो डिफॉरेस्टेशन अपने आप कम होगा. कंपोजिशन क्या है बायोगैस का? इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन अप टू 75%, CO2 25% एंड सम अदर गैसेस टू. ऑलराइट, अब 75-25 तुम सोचोगे 100 हो गए, फिर और गैसेस कहाँ से आई? सम वॉट दे आर लेस, 24 पॉइंट समथिंग, 74 पॉइंट समथिंग. तो कुछ पार्ट गैसेस के भी होते हैं. Methane is a high value calorific fuel. Carbon dioxide is an inert gas. Question देखें, biogas is an excellent fuel. Justify the statement by giving 2 reasons. Mention the main constituents of the biogas. Let's see. It burns without smoke, no residue. जलने के बाद कुछ नहीं पीछे बचता. Therefore causes no atmospheric pollution. हीटिंग कैपेसिटी इज हाई. बताया था ना अभी, पेट्रोल से भी ज़्यादा एनर्जी देता है. 1 ग्राम पेट्रोल का जलेगा, 1 ग्राम बायोगैस चलेगा, बायोगैस का 1 ग्राम ज़्यादा एनर्जी देगा. तो उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. मेन कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायोगैस आर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, हमने क्या डाला उस पर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट फिर भी
methane 50 to 75%, CO2 25 to 50%, it can vary, nitrogen, hydrogen, hydrogen sulfide. I hope it is very clear to you guys. Nikhil and Neha went to a remote village in Kerala to meet their grandmother. बच्चे गए कहीं अपने grandmother से मिलने. They were surprised to see a biogas plant in Mr. Nayar's house in the neighborhood. There were plenty of livestock and the household house being used in the. समझे question को. They contacted Sarpanch of the village and convinced him to set up a biogas plant for village community. Mention the values displayed by Mr. Nayar, Nikhil and Neha. Explain the possible arguments given by Nikhil and Neha to the Sarpanch to convince him to set up a biogas plant. सोचो आप ही हो. Stop the video over here and imagine and then see. The values displayed by Mr. Nayar, Nikhil, Neha are higher degree of general awareness, helping nature. निखिल एंड नेहा की कौन सी बात थी है? नॉलेज शेयरिंग, हेल्पिंग नेचर, कंसर्न फॉर दी कम्युनिटी एडवांटेज कि लोगों का भला होगा हम ये चीज़ करेंगे तो. पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए होंगे उन्होंने? फर्स्ट, इकोनॉमिकल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत सस्ता पड़ेगा बाद में. क्लीनलीनेस ऑफ द होल विलेज, जो कचरा आप लाके इसमें डालो ना तो विलेज अपना आप क्लीन रहेगा. थिंक ऑफ इट, विलेज क्लीन भी रहेगा और उसी से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. बट पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर. यूज ऑफ स्लरी, जो लेफ्ट बिहाइंड स्लरी होती है ना, इट कैन बी यूज, इट इज रिच इन नाइट्रोजन and phosphorus, so it can be used as a manure, खाद की तरह. It reduces air pollution and greenhouse effect. Air pollution और greenhouse effect को कम कर देता है. It raises the standard of living. It is beneficial to entire village community. गांव में सारे लोगों के लिए बहुत beneficial है. Basically, they discuss and explain the advantages of community biogas plant for the entire village. ये उन्होंने आर्ग्यू किया तो सरपंच साहब भी एग्री हो गए, रेडी हो गए. आई होप यू गॉट इट गाइस. आई होप इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू. कैसे हमने अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज के बारे में जाना, ओशियन, बायोगैस. आई होप इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लियर टू यू. थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.